Hello everyone, this is Neha. I welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials English. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैंडर्ड 9th और 10th के इंग्लिश ग्रामर के एक चैप्टर कमांड और रिक्वेस्ट को डिस्कस करने वाली हूँ. बिफोर आई स्टार्ट दिस डिस्कशन, आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी यूज़ कमांड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिक्वेस्ट. तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एक सेंटेंस लिखा है. इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके क्या यूजेस हैं. This is a sentence set. Suppose I say this sentence to my teacher. Can I sit? I just want a permission whether I can sit or not. Then my teacher says no. Because he says, he gives the reason, the way, the approach I made for asking the permission, that was not appropriate. मैंने जो तरीका यूज़ किया है वो appropriate नहीं है. So what is the mistake here? Let's find it. Actually this can is used in informal situation. When you are talking to the people who are very friendly to you, who are not formal to you, then you can use the word can. तब हम can का यूज़ कर सकते हैं. ये informal यूज़ होता है. इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए? For being formal we can use here the word may, and the rest of the words will be say. So may I sit? Yes, may is a formal one because it is used whenever you are talking to a person, that is the person whom you are talking to is elder to you or senior to you. या तो वो आपसे बड़ा है या तो सीनियर है. when you are being formal to someone, जब आप उससे फॉर्मल हो रहे होते हैं, then you will use the word may in place of the word can. जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं जिनके साथ आपको फॉर्मल नहीं रहना है, then you can use the word can here. Okay, this was the difference. चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कमांड किसे कहते हैं, रिक्वेस्ट किसे कहते हैं, and we will have some examples to understand it better. We can write command is used to tell or order someone to do something. हम कह सकते हैं कि कमांड जो होता है इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं कुछ करने के लिए. ठीक है, लाइक वी आर गिविंग सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन बट इट इज़ इन अ काइंड ऑफ ऑर्डर. लाइक इफ आई से शट द डोर, सिट हियर, गो देयर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. सो दीज ऑल आर कमांड्स. ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? कमांड्स हो जाएंगे. अब इसके लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. जैसे इफ आई से राधा is sitting on the chair. Okay, देखो, if I say this sentence, this is not a kind of command. If I have to just transform this sentence into a command, I should write sit on the chair Radha. So this is an example of command and this is not an example of command. This is just a simple sentence when you are saying, you are giving some information about someone. ये declarative sentence हो गया. और ये वाला जो sentence है, this is a kind of command. ये क्या हो गया? command हो गया. sit on the chair राधा. राधा कुर्सी पे बैठ जाओ. You are giving an instruction, command also. But here you are not giving some kind of instruction or command. You are just telling about Radha that she is sitting on the chair. तो ये होता है कमांड. जब आप किसी को सामने से ऑर्डर देते हो, कमांड देते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो कि आप ऐसा करो, देन दैट इज़ अ कमांड. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट होगा. नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे राजू प्लीज सिट ऑन द चेयर. प्लीज सिट ऑन द चेयर. ओके, और मैंने जो पिछला एग्जांपल लिखा था वो भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ. सिट ऑन द chair Radha. देखिए, what difference do we find in both of the sentences? Actually the first sentence is, here we have included the word please, but here there is no word please. तो इसे हम कह सकते हैं this is a polite command. This is a polite command. जब आप विनम्रता के साथ किसी को कमांड दे रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शन भी आप दे रहे हो तो विनम्रता के साथ, बहुत प्यार से कि यार प्लीज़ बैठ जाओ, तुम प्लीज़ बैठ जाओ, प्लीज़ तुम ऐसा कर दो, प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो. सो यू आर गिविंग अ कमांड. यहाँ पे भी आप कमांड ही दे रहे हो लेकिन आपने यहाँ पे प्लीज़ वर्ड लगा दिया है.
आप पोलाइटनेस के साथ वो कमांड दे रहे हैं। और यहाँ पे सिट ऑन द चेयर, इट इज़ जस्ट लाइक एन ऑर्डर, ये ऑर्डर की तरह होगा कि बैठ जाओ, बस तुम्हें बैठ जाना है। तो दिस इज नॉट अ पोलाइट कमांड एंड दिस इज अ पोलाइट कमांड। आपने जब वर्ड प्लीज को इंक्लूड कर दिया सेंटेंस के अंदर, दिस इज अ पोलाइट कमांड। अब नेक्स्ट होगा, जब भी हम कमांड्स वाले सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम कभी भी उन सेंटेंसेस में वर्ब जो होता है वो हमेशा इन्फिनेटिव होता है। वर्ब का फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता है। इट डजंट वेरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर टोल्ड इन दिस सेंटेंस। जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिनसे कहा जा रहा है, नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग हम अपने वर्ब के फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे सिंपली हम अगर सेंटेंस बोले तो बोल सकते हैं राम गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। तो राम अकॉर्डिंग टू सिंगल, राम इज सिंगल तो हमने गोज लगा दिया, दे के साथ हमने गो लगा दिया। तो सेंटेंसेस में ऐसे चेंज हो जाता है टेंस में जब हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम कमांड दे रहे होते हैं तब वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल हमारे वर्ब के फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कीप क्वाइट स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कीप क्वाइट राजू। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, राजू कीप क्वाइट, ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये भी कमांड है, ये भी कमांड है। देखिए यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है जिससे बात कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं, दैट पर्सन इज सिंगुलर बट हियर द वर्ड कीप इज नॉट चेंज। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स, ये भी प्लूरल है नंबर में, फिर भी हमने कीप को एज इट इज रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ, दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। स्टूडेंट्स go and play, and when you say Raju go and play, स्टूडेंट्स आप लोग जाओ और खेलो, ये भी सही है। राजू जाओ और खेलो, ये भी सही है। तब यहाँ स्टूडेंट्स होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम लिखते हैं दिस इज अ प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर का हमारा सब्जेक्ट है। फिर भी जो वर्ब आए हुए हैं दोनों, इन वर्ब्स के फॉर्म में कोई चेंज नहीं है। इसके बाद राजू जो है ये सिंगुलर है, इसके बाद भी वर्ब के फॉर्म में कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब है कि जब हम कमांड्स दे रहे होते हैं, कमांड के सेंटेंसेस बोलेंगे या लिखेंगे, उस दौरान हम अपने वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज इंफिनिटिव फॉर्म में ही रह जाएगा सेंटेंस में। इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसे, वर्ब इज ऑलवेज इन infinitive form and doesn't change according to the number of people। वर्ब जो होता है वो इन्फिनेटिव के फॉर्म में होता है, और नंबर ऑफ पीपल चाहे जो भी होगा हमारे सेंटेंस में, जो कमांड वाला सेंटेंस बोला जा रहा है उसमें नंबर ऑफ पीपल कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लैक्स हो, इट डजंट मैटर। वर्ब का फॉर्म हमेशा एज इट इज रहेगा, कभी उसमें किसी भी प्रकार का चेंज हम नहीं ले आएंगे। ओके, देखिए अब बात करेंगे नेगेटिव कमांड्स की। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं, जो सेंटेंसेस दिए हैं, वो सभी के सभी सेंटेंसेस कहीं ना कहीं पॉजिटिव थे। पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव, वेयर नॉट इज नॉट यूज्ड, नॉट वर्ड को कहीं इंक्लूड नहीं किया गया था। अब नेगेटिव कमांड्स की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव का मतलब व्हेन यू आर सेड नॉट टू डू समथिंग, जब आपको ये, जैसे अगर मैं कहूँ शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, देन आई एम टेलिंग कि हाँ करना है। हाँ, इफ़ आई से डोंट शट द डोर, दरवाज़ा बंद मत करो, देन आई एम प्रोहिबिटिंग द पर्सन। सो वी कैन से नेगेटिव कमांड्स मीन्स prohibition, or when you prohibit someone from doing something, when you prohibit someone from doing something, or you can also say when you are giving a command to a person for not doing anything, जब आप ये कमांड दे रहे होते कि ये काम नहीं करना है,
तब उसे हम कहते हैं नेगेटिव कमांड। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। वी कैन से डोंट ईट स्पाइसी फूड डेली। हर दिन स्पाइसी फूड मत खाओ, हर दिन स्पाइसी फूड तुम्हें नहीं खाना चाहिए, या जो भी इसका सेंस हम दें, स्पाइसी फूड मत खाओ। मतलब यहाँ डोंट जो है, डोंट मतलब नहीं करना, ठीक है। स्पाइसी फूड क्या नहीं करना है, स्पाइसी फूड हर दिन नहीं खाना है। सो हियर इज अ सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। जब आप एक ऐसा कमांड देते हैं जहाँ प्रोहिबिट करते हैं, आप किसी को कुछ करने से मना करते हैं, जैसे डोंट स्विच ऑन द फैन, फैन को स्विच ऑन मत करो। डोंट स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ मत करो फैन को। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। सो दीज आर द प्रोहिबिशंस। डोंट बी वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव मत रहो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग फन ऑफ अदर्स, दूसरे का मजाक उड़ाने में अपना समय बर्बाद मत करो। सो दीज ऑल आर द सेंटेंसेज ऑफ नेगेटिव कमांड्स। आई एम गोइंग टू राइट हियर अ फ्यू सेंटेंसेज ऑफ दैट, लेट्स सी देम एंड अंडरस्टैंड देम। देखिए, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। डोंट स्मोक, स्मोकिंग मत करो, धूम्रपान मत करो। डोंट टॉक टू देम, उन लोगों से बात मत करो। यहाँ तीनों सेंटेंसेस में जो सेंस आया है वो इसी के लिए है कि ये नहीं करना है तुम्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। सो ये सभी के सभी सेंटेंसेस नेगेटिव कमांड्स के हैं। आप इस तरह से आराम से सेंटेंसेस डोंट लगा करके या डू नॉट भी लगा करके आप इसको अलग करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जहाँ सजेशन दिए जा रहे हों, लेकिन सजेशन कैसा, वैसा सजेशन जहाँ सजेशन एक ग्रुप को हो और उस ग्रुप में हम खुद भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इस तरह के सजेशंस देने के लिए हम कैसे कमांड्स का यूज़ करेंगे वो सीखते हैं यहाँ पे। when we want to make a suggestion to a group of people including ourselves in that group, we use let's command। let's, ओके। ये लेट्स जो है यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफी एस में लिखा हुआ है, सॉरी इसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है एंड हियर इज एन अपोस्ट्रोफी, इसके बाद मैंने यहाँ पे एस लगाया है। तो जब हम किसी ऐसे ग्रुप की बात करेंगे, सजेशन की बात करेंगे जिस ग्रुप में हम खुद भी इंक्लूडेड है, तब हम वहाँ पे लेट्स वर्ड लगा करके अपने कमांड को बोलते हैं या लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक पे जाते हैं, चलो हम सभी वॉक पे जाते हैं, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ सजेशन एंड ऑल्सो अ कमांड, बिकॉज यू आर गिविंग द कमांड टू द ग्रुप इन विच यू आर ऑल्सो देयर। और साथ ही साथ ये सजेशन भी हो गया कि हमें वॉक पे जाना चाहिए, तो ये सजेशन के साथ साथ कमांड भी हो गया। नाउ नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं, अगर इसमें हमें नेगेटिव देना हो तो, अगर इसे ही हमें नेगेटिव कमांड के रूप में बोलना है, बताना है, लिखना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं लेट्स नॉट हैव आइसक्रीम टुडे। आज हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं, मतलब यहाँ पे भी प्रोहिबिशन है और ये क्या है, नेगेटिव है। ये वाला क्या था, ये पॉजिटिव था, और ये वाला जो है ये क्या है, ये नेगेटिव कमांड है। मतलब कुछ करने से रोका जा रहा है कि भाई हमें आज आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, आज हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट द कमांड्स। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ रिक्वेस्ट को डिस्कस करूंगी, तब तक आप कमांड्स को प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे सेंटेंसेस भी बोल सकते हो, आपके डे टू डे लाइफ में भी यूज़ हो जाएंगे। साथ ही साथ आप सेंटेंसेस लिख करके प्रैक्टिस भी करते रहिए। टिल देन नेक्स्ट सेशन में जब तक मैं रिक्वेस्ट को डिस्कस करती हूँ, तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड टू मी। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, बाय।